आजकल के बच्चों को सेविंग्स और फाइनेंशियल लिटरेसी की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं। मेरे को इसमें कुछ बिल्कुल भी वैल्यू नहीं लग रही है। Marham, a financial lending firm that provides finances for emergency treatments to uninsured people. प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन वेरी गुड। आप तूने करी है, मैं नहीं मान रहा। Filled Void, a clothing brand for visually impaired. कॉलेज की एडमिशन हो जाएगी अच्छी जगह, बट उससे बिजनेस नहीं बनेगा। Hi, I'm Yavish. I'm the founder of Speakeasy. I'm from Faridabad and my whole family is there, my parents and my grandparents. I'm currently 11th grade, CBSE board, Delhi Public School, Faridabad, and I'm studying commerce. I have a great interest in entrepreneurship, financial markets and all of that. And I was lucky enough to be one of the only Indian students to visit the Wharton School at San Francisco for a summer program, and that was also an amazing experience. So entrepreneurship is the way forward. Did you know 73% of the world is afraid of public speaking? In fact, more people are affected by the fear of public speaking than of death itself. Any good presentation is dependent 38% on your voice, 55% on your non-verbal communication, and just 7% on your content. Hi Ashneer, मेरा नाम याविश है and I'm from Faridabad. Personally, having feel anxiety and blankness on stage, I resorted to Googling it. Public speaking coaches, classes, courses, clubs. As a student, मेरे बजट के बहुत बाहर थे और एक आम भारतीय के लिए public speaking coach is just too expensive. Then what do we do? Utilizing the courses and clubs, I learned how to make my voice go up, how to speak in a baritone, how to speak super ultra fast to make you all excited, or how to speak slowly and steadily to get attention. But after all this prolonged effort, I realized that there must be some cheap, effective and easy method to master public speaking. Imagine a world where AI could help us master public speaking. I present to you Speakeasy. All you need to do is deliver your speech in the app. It will give you immediate results and you can start practicing all your weaknesses with our specialized skill drills. Speakeasy can make anyone more better at public speaking using AI, you know. Hey Yavish, a feedback for you. More better is grammatically incorrect. You spoke the word like twice and you know once. And your pace is too fast. See, it works. Speakeasy has the potential to disrupt the public speaking market and change millions of lives. It is super scalable, low cost, and easy to access with individualized training. Speakeasy is like your own personal public speaking coach in your pocket. You can practice anytime, anywhere, learn anytime, present anytime, and most importantly, impress everyone. Thank you. तो यविश, तूने जो AI बनाया उसने एक चीज़ नहीं पकड़ी। तूने फील्ड बोल दिया, फेल्ट होता है। Personally, having feel anxiety and blankness on stage. तो थोड़ा काम करना पड़ेगा इस पे और। But what प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा है? किसी को पब्लिक स्पीकर क्यों बनना है? सबको नेता थोड़ा बनना है। सर, हमारा पब्लिक स्पीकिंग में पब्लिक स्पीकिंग encompasses everything. From your interview, आपको डेट पे जाना है, you have to appear for a job, आपको सैलरी नेगोशिएट करनी है, आपको ग्रुप डिस्कशन करना है। इट इज़ अ स्किल जो हर जगह प्रेवलेंट है। नहीं, पर वो तो चलो स्कूल का कॉन्सेप्ट है ना। स्कूल वालों को सबको डिबेट करानी है, सबको पब्लिक स्पीकर बनाना है, वो स्कूल वालों का एजेंडा है। इन जनरल मैंने लाइफ में ऐसा मेरे लिए कोई वो उसका मायने नहीं है। जो सबसे स्मार्ट बंदे मैंने देखे हैं वो कंप्लीट इंट्रोवर्ट होते हैं। एंड आज की दुनिया में लोगों को फ़र्क भी नहीं पड़ता, मतलब लोगों को है कि ठीक है यार, फंडामेंटली बंदा ठीक है या नहीं है, पब्लिकली बोल रहा है या शर्मा रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है किसी को। सर, अगर हम एक जॉब का एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे 2 कोडर्स हैं, दोनों के पास इक्वल स्किल सेट है और एक कम्युनिकेशन में अच्छा है, एक नहीं है, तो एज अ फाउंडर, एज अ CEO, एज अ ओनर ऑफ द कंपनी, एज अ फाउंडर मेरी प्रॉब्लम है ना। अगर जो अच्छा बोल रहा है मैं उसको रख रहा हूँ, मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे को तो उन दोनों को एक कोडिंग प्रॉब्लम देनी चाहिए।
जिसने सही सॉल्यूशन निकाला उसको रखना चाहिए, एंड नॉर्मली कंपनीज वही करती हैं। मेरे को जेन्युइनली ये लगता है कि फालतू का एम्फेसिस दिया जाता है आपकी एबिलिटी टू पब्लिक स्पीक पे, ठीक है। एक चीज़ पब्लिक स्पीकिंग सबके लिए है ही नहीं, मतलब वो आप ये नहीं है कि सुबह घर से निकलोगे और आपको 1000 लोग मिल जाएंगे और आपको उनको एड्रेस करना है। पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही कम लोगों के लिए रेलेवेंट होती है कब लाइफ में जाके, ठीक है। कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे बोलना कि दूसरा वाला बंदा इम्प्रेस हो जाए उससे इतना मायने नहीं पड़ता। आप क्या बोल रहे हो उसमें लॉजिक है या नहीं है, उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। हाँ ठीक है, किसी को अपनी डिक्शन बेटर करनी है, उसके लिए एआई बहुत यूज़ आएगा एंड वॉइस समझ आती है अब सबको, बट मैं तो प्रॉब्लम लेवल पे ही इससे बहुत ही दूर हूँ, ठीक है। तो थैंक यू। थैंक यू। Hi, I'm Kushan and I'm the founder of Get It Growing. So I'm in the 11th grade and I study at the Step-by-Step school in Noida. I'm doing the IB program where I'm interested in economics, business and physics as well. So I have quite a different interest radar right now. I'm really excited for this opportunity and grateful that I've been given this chance to pitch to Ashneer. जैसे बुक्स खरीदना तो सबको पसंद है, पर खरीदने के बाद ज़्यादातर लोग इन्हें पढ़ते नहीं। वैसे ही प्लांट्स खरीदते तो सब है, पर इन्हें मेंटेन करना सबके बस की बात नहीं। गुड आफ्टरनून अशनीर सर, मेरा नाम कुशान है और मैं दिल्ली से हूँ। प्लांट्स को मेंटेन करना एक बहुत ही टीडियस प्रोसेस है। इस प्रोसेस में मैन्योर के लार्ज बैग्स खरीदना, इन्हें स्टोर करना और फाइनली मेजर कर थोड़ा सा मैन्योर प्लांट्स में डालना, ये काफ़ी इनकन्वीनियंट है। और स्पेशली ड्यूरिंग कोविड जब घर पर माली आना बंद हुआ, आई सॉ द मार्केट गैप। प्लांट्स तो सबके पास होते हैं, बट नॉट एवरीबडी हैज़ द टाइम और एफर्ट टू टेक केयर ऑफ देम। इन दैट्स व्हेन आई केम अप विद द आइडिया फॉर माई बिजनेस गेट इट ग्रोइंग, व्हेन वी सेल ऑर्गेनिक मैन्योर स्टिक्स। पिछले 1 साल में हमने एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप किया है जो कोकोपीट, वर्मी कॉम्पोस्ट, काउ यूरिन, काउ डंग और नीम का एक मिक्स है। मोर इम्पॉर्टेंटली हम इसे एक स्टिक फॉर्म में बनाते हैं विच एलिमिनेट्स द नीड टू मेजर हाउ मच मैन्योर टू पुट। अपने पॉट में सिर्फ गेट इट ग्रोइंग के 4 स्टिक्स डालिए, उनके ऊपर थोड़ा वाटर पोर कीजिए एंड यूर ऑल सेट फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स। अभी हम अपने प्रोडक्ट को अपने वेबसाइट, अमेजॉन और वेरियस स्टॉल्स के थ्रू सेल कर रहे हैं और फ्यूचर में स्पेशलाइज्ड गार्डनिंग वेबसाइट्स जैसे ugav.com पर भी सेल करेंगे। सो चाहे आप एक बिजी प्रोफेशनल हैं जो सिर्फ अपने प्लांट्स का केयर करना चाहते हैं या एक पैशनेट गार्डनर, गेट इट ग्रोइंग इज द परफेक्ट सोल्यूशन फॉर ऑल। थैंक यू। सो कुशान ये एक्चुअली में सेल कर रहा है ऐसे बोल रहा है तू? नहीं सर, एक्चुअली सोल्ड, आई हैव सोल्ड ओवर 550 बॉक्सेस सो फार एंड विद दिस रेवेन्यू एक बॉक्स कितने रुपए का है? 150। सो आई सेल 60 स्टिक्स इन 1 बॉक्स, सो 2.5 रुपीस पर स्टिक। तो एंड ये स्टिक कितनी फ्रीक्वेंसी से डालनी होती है प्लांट में? वंस इन एवरी 2 मंथ्स। तो 12-15 प्लांट के लिए 2 महीनों के लिए आपका पूरा गार्डनिंग नीड्स आर मेंटेन विद 150 रुपीस। ओके। एंड इसको टारगेट कैसे कर रहे हैं, मतलब वैसे अमेजोन पे लिस्ट कर दिया बस? सो सर राइट नाउ मैं अमेजोन पे लिस्ट करा एंड मेनली अभी मैं इंस्टाग्राम एड्स के थ्रू अपना अवेयरनेस बढ़ा रहा हूँ। बट उसके अलावा मैंने अभी दिल्ली में जैसे एक मार्केट है सुंदर नर्सरी मार्केट, क्वाइट पॉपुलर, सो आई सेट अप अ स्टॉल देयर ड्यूरिंग द विंटर मार्केट एंड वहाँ पे मैंने ओवर 190 बॉक्सेस सेल करे, तो उससे मेरा लोकल अवेयरनेस काफ़ी बढ़ा। फिर मैंने जाके अपने कॉलोनी के पास में जो नर्सरीज़ हैं उनमें भी जाके उनसे बात करी, दे कुड जस्ट कीप माई प्रोडक्ट एज अ टेस्ट टू सी व्हाट पीपल हैव टू से। तो ये मेरे अभी 2 अदर वेज है टू लोकली आल्सो स्प्रेड अवेयरनेस एंड फ्यूचर में ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम एड्स। एसेंशियली तूने करा क्या है कि जो ऑलरेडी मैन्योर कहीं पे बन रहा था तूने उसको स्टिक के फॉर्म पे कन्वर्ट करवाया है या किसी और से सोर्स कराया है? तो सर देयर इज दिस काउ शेड इन इंदौर विच इज़ वन ऑफ माई फैमिली फ्रेंड्स काउ शेड। सो ये प्रोडक्ट मैंने उनके साथ बैठ के डेवलप करा है। सो इन द सेंस इट्स नॉट जस्ट मैन्योर बट इट्स अ मिक्स ऑफ काउ डंग, काउ यूरिन विच इज़ मैन्योर प्लस कोकोपीट, वर्मी कॉम्पोस्ट एंड नीम। तो इसमें 3 एडिशनल एलिमेंट्स है विच अलाउ फॉर बेटर ग्रोथ एंड ये अभी सिर्फ मेरे लिए बना रहे हैं। तो स्टिक फॉर्म में एक मशीन से बना रहे हैं, बट अभी मेरी उनसे अग्रीमेंट हुई है विच दे जस्ट मेक दिस फॉर मी एंड फ्यूचर में आई ऑल्सो बी अप्लाइंग फॉर अ पैटेंट टू इंश्योर कि ये जो मेरा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है इज़ नॉट बीन कॉपीड। बट है तो कमोडिटी प्रोडक्ट ना, मतलब कोई भी बना सकता है ना
कोई? हाँ जी सर, ऐसे कोई? यस सर, बट इट टेक्स टाइम टू, क्योंकि मेरे को इट टुक मी ओवर 6 months स्मार्टनेस ये है कि बस स्टिक फॉर्म में है और एंड सर बेटर ग्रोथ आल्सो, क्योंकि इट्स अ मिक्स ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। एंड तुमको एक डब्बा कितने का पड़ता है? 90 रुपीज़। तो 150 रुपये का बेच रहे हो? यस सर, सो 40% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। नहीं, प्रॉफिट तो बाद में आएगा, पहले अमेजोन को कितना दे रहे हो? अमेजोन टेक्स राइट नाउ 37 रुपीज़। और उसमें उनकी डिलीवरी भी उनकी है? नहीं, डिलीवरी एडिशनल कॉस्ट आई टेक 80 रुपीज़ होती है ऑन एवरेज, सो आई टेक 80 रुपीज़ ऑफ डिलीवरी कॉस्ट इज वेल। कहाँ से करा रहे? डिलीवरी से किससे? सर अमेजोन ओनली डिलीवर्स, तो मैंने FBA करा हुआ है वेर तो अमेजोन को 80 रुपये और दे दिए? हाँ, एंड आई चार्ज एक्स्ट्रा ऑल्सो फॉर डिलीवरी। चार्ज करता है एक्स्ट्रा डिलीवरी का? तो 150 रुपये के लिए मैं 80 रुपये और दूँ ऊपर से डिलीवरी के? यस सर, बट सर इन द फ्यूचर अगेन मैं अपना प्राइस आई एम थिंकिंग ऑफ डबलिंग द प्राइस टू 300, सो उसमें आई विल बी एबल टू प्रोवाइड फ्री डिलीवरी। नहीं, आज तक रिपीट ऑर्डर आया कोई? हाँ जी सर, मेरे all my Amazon, all the, so I've sold 220 boxes through Amazon. All of them are through, and people have paid 80 rupees for delivery for them. तो अमेजोन पे कुछ भी लिस्ट कर दोगे ना, 1000 तो नंबर ऐसे ही बिक जाता है। मतलब कोई इतना बड़ा देश है, करोड़ों लोग बैठे हैं अमेजोन पे वेले, तो कुछ भी खरीद लेते हैं। बट मेरे को इसमें चैलेंज क्या लगता है कि ये बहुत ही कमोडिटी प्रोडक्ट है। एंड दूसरा क्या है कि हिंदुस्तान में जिनको ये चीज़ खरीदनी है उसको अपने हाथ तो गंदे करने नहीं है, ठीक है? सबको पौधे चाहिए अपनी बालकनी में, बट या तो हाउस हेल्प उसको मेंटेन कर रहा है या माली आके हफ्ते में एक बार ही मेंटेन कर रहा है। तो मेरे को लगता नहीं है टॉप ऑफ द माइंड प्रॉब्लम है। एंड अगर प्रोडक्ट में दम भी है तो वो बहुत ही कमोडिटाइज प्रोडक्ट है, मतलब कोई भी बना के रोल करके बेच सकता है, तो इतना कुछ खास है लगा नहीं मेरे को। बट ठीक है, गुड थिंग इज़ तूने एटलीस्ट बेचा है कुछ, सो आई थिंक दैट इज़ गुड कॉन्फिडेंस, इट्स नॉट जस्ट कॉन्सेप्ट। चलो, थैंक यू। थैंक यू। रिपोर्टिंग फ्रॉम मास्टर्स यूनियन लाइव। आज की ताज़ा खबर, एक और नया हादसा शराब के हाथों। ड्रंक ड्राइविंग एक ऐसी कहानी है जो पूरी दुनिया को बर्बाद कर रही है। WHO के अनुसार प्रतिदिन 3,500 लोग मरते हैं इस हानि की वजह से। दैट इज 1.2 मिलियन पीपल इन अ ईयर। दैट इज अ ह्यूज नंबर। एंड अबाउट अ पर्सन्स लाइफ टाइम, दैट इज 100 मिलियन पीपल। क्या ये दुर्घटना कभी खत्म होगी? My name is Siddhant. I'm from Malviya Nagar, Jaipur, and today I'll be showing you Driveen. Driveen is a product that aims to eliminate the idea of drunk driving and make driving safe once again. Driveen का मेन फोकस है कि वो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो सेफली और एफिशिएंटली गाड़ी को चलने से बंद कर दे if the driver is intoxicated. And to prove that concept, मेरे पास एक प्रोटोटाइप है। इस प्रोटोटाइप के दो फंक्शंस हैं। पहला, टू एनालाइज द लेवल ऑफ अल्कोहल, और दूसरा, टू सेंड अ मैसेज टू द नंबर दैट हैज बीन फिल्ड इन द डेटाबेस। ये देखिए, मेरे पास मैसेज आ गया है। अल्कोहल डिटेक्टेड दिस व्हीकल नंबर, शोइंग द व्हीकल नंबर एंड स्टेटिंग द लोकेशन ऑफ द कार। When this final product will be made, the sensor will be fit on the steering wheel of the car, wherein the car will only start if the driver has blown into the sensor. Once the driver has blown into the sensor, the machine will analyze. If the driver is intoxicated, the car will then send a message to the emergency contacts that will be saved on the app. The car will then stop moving because of the remote ignition system that is there in every single car now. मेरा ड्राइविंग के साथ एक ही सपना है, जो मैंने ये सिंपल प्रोटोटाइप बनाया है विद जस्ट सम वायरिंग एंड सम प्रोग्रामिंग। इसको मैं एक ऐसा फाइनल कटिंग एज प्रोडक्ट बनाऊं जिससे कभी भी पूरी दुनिया में कोई भी ड्रंक ड्राइविंग की वजह से ना मरे। थैंक यू। तो सिद्धांत, गुड कॉन्सेप्ट, बट मेरे को एक बात बता कि तू इसको ऑपरेशनलाइज कहाँ पे करना चाहता है? मतलब एक नॉर्मल कार पे या किसी और चीज़ में? सर, ये एक्चुअली मैं B2B मैन्युफैक्चर करूँगा टू एवरी सिंगल ट्रक्स, कार्स, बसेस, क्योंकि अब सभी लोग ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं। तो आई विल बी सेलिंग दिस टू एवरी सिंगल कार मैन्युफैक्चर इन इंडिया ऑल अराउंड द वर्ल्ड एज वेल, सो दैट नोबडी हैज़ टू, कमिंग बैक टू माई पॉइंट, डाई अगेन बिकॉज ऑफ दिस। कभी सोचा है कि जो मैन्युफैक्चरर हैं वो इतने सॉलिड फीचर ऐड करते रहते हैं गाड़ी में? मतलब लाइक टेक्निकली गाड़ी आपकी सबसे हाईटेक चीज़ होती है जो आप
बाय करते हो, ठीक है, तो किसी मैन्युफैक्चरर ने आज तक ये क्यों नहीं बनाया होगा? सर एक्चुअली दिस टेक्नोलॉजी इज़ रियली न्यू. अभी अगर आप मार्केट में कहीं भी देखेंगे देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन. आई एम द फर्स्ट पर्सन टू बी मेकिंग दिस एंड आई विल बी यूजिंग एन इंफ्रारेड रे टेक्नोलॉजी दैट विल बी इन द फ्यूचर प्रोसेसेस. तो सर अभी टेक्नोलॉजी न्यू है. आई थिंक आई वाज द ओनली वन हु गॉट द आइडिया. अब मेरे को बताना कि इलॉन मस्क ने टेस्ला बनाई, ठीक है, उसने सब चीज़ें सोच ली, मतलब ऑटोनोमस गाड़ी खुद से चल रही है, वो तक बनाने पे लोग आ गए हैं. तो ये सिंपल चीज़ कि यार जो ड्राइवर है उसका अल्कोहल लेवल चेक कर लेते हैं, एंड ये कोई नया नहीं है ना, बिकॉज जब पुलिस वाले पकड़ते हैं वो भी तो आपको एक चीज़ में ब्लो करने को बोलते हैं, वो भी तो सेम चीज़ है. एंड वो अगर कोई कार मैन्युफैक्चरर बनाएगा तो उसको और भी छोटा और भी जायज़ी बना सकता है, बट थोड़ा सा दिमाग लगा कि क्यों नहीं बनाया होगा उन्होंने. सर हो सकता है कैन देयर इज़ वन ड्रॉबैक टू दिस कि इट कैन बी अ लिटिल इनएफिशिएंट. इफ समवन नीड्स टू गो टू द हॉस्पिटल फॉर एग्जांपल तो इट कैन बी अ लिटिल इनएफिशिएंट, बट आई एम वर्किंग ऑन मेकिंग दिस प्रोडक्ट द मोस्ट एफिशिएंट दैट कैन बी. तो यार देख, इसमें ना बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जितने भी, इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, आपने एक यूज़ केस निकाला है जो कि अच्छा यूज़ केस है. मेरे को लगता है कोई भी कार मैन्युफैक्चरर अपनी कार में कभी ऑलरेडी फिट करके नहीं डालेगा, ठीक है, बिकॉज एक लाइन होती है कि यार तुम किसी बंदे की प्रिवेसी और में जा रहे हो, कि क्योंकि जो कार है वो एक रियल एस्टेट भी है विच इज़ योर प्राइवेट स्पेस. तो एंड कोई भी मैन्युफैक्चरर वो चीज़ में नहीं घुसेगा अनटिल अनलेस गवर्नमेंट ही मैंडेट कर दे कि उसके अंदर डालो. मेरे को इसका यूज़ केस बेटर वहाँ पे लगता है जहाँ पे आप एक फ्लीट ओनर हो, आपकी ट्रकिंग की कंपनी है. yes, आपको ये है कि मेरा ड्राइवर ड्रंक ड्राइविंग ना करे, तो वहाँ पे भी हो सकता है. बट इसमें भी यार यू कैन ईजिली बाईपास ना. मैं किसी और बंदे को बोल दूंगा यार मैंने तो पी रखी है, तू फूक मार दे, गाड़ी तो स्टार्ट करनी है और क्या करना है. यस सर, लेकिन अभी एज आई सेड मैं एक्चुअली एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगा आगे जाके कि वो कंटिन्यूसली करता रहे, और इफ़ द पर्सन इज स्टिल इंटॉक्सिकेटेड व्हाइल ड्राइविंग इट the machine will be sending a live location again and again. For example, जैसे आपने अभी फ्लीट ड्राइवर्स का एग्जांपल लिया, तो जो बंदा जो फैक्ट्री मैन्युफैक्चर होगा उसका नंबर अपन फीड कर सकते हैं, तो ही कैन कीप ऑन चेकिंग इफ द ड्राइवर इज इंटॉक्सिकेटेड और नॉट. और अगर वो है तो उसकी लाइव लोकेशन आती रहेगी सो दैट द पर्सन कैन मेक श्योर इफ ही इज ड्राइविंग सेफ और नॉट, और इफ यू वांट समवन एल्स टू ड्राइव द कार वहाँ पे जाके. हाँ, बट मेरे को भी इसमें मेन प्रॉब्लम वही लग रही है कि कोई भी कंपनी अपने कस्टमर पे स्निच नहीं करती. आप कोई भी नई एज कार ले लो, उसमें इतने इनफ सेंसर्स लगे हैं कि अगर आप ड्राउजी हो रहे हो थोड़ा सा या आपको नींद आ रही है तो आपका स्टीयरिंग व्हील भी वाइब्रेट कर देता है, सायरन भी बज जाता है, और आपके डैशबोर्ड में आ भी जाता है यू नीड अ कॉफ़ी ब्रेक. मेरी गाड़ी में भी लगा हुआ है. कोई भी कंपनी ये नहीं डालेगी कि मैं एक चीज़ ट्रैक करूँ जो कि कोई भी गवर्नमेंट आके कल को बोल सकती है ये डेटा मेरे को दे दो. इसमें तो क्रिमिनलिटी बनती है कि कोई पी के चला रहा था, आपके सेंसर ने सेंस कर लिया, अब मेरे को डेटा दो, मैं इसको जाके अंदर करेंगे या इस पर फाइन लगाएंगे. सो आई थिंक दैट इज़ वेयर द की चैलेंज इज. टेक्नोलॉजी इज़ नॉट वेयर द चैलेंज इज. बट अगेन आई सेड यू नो एज इन कंपैरिजन टू द अदर थिंग्स आई थिंक यू स्टिल ऑन टू समथिंग जो कि कमर्शियल फ्लीट में काम आ सकते हैं लोगों के. सो गुड पिच. थैंक यू सो मच. Hi Ashneer, my name is Ragvi and my business idea is UniConnect. मैं भी एक वही टॉर्च बेयरर ऑफ दिस इंडस्ट्री बनना चाहती हूँ. गोले वाले बाबा बनने की कोशिश कर रहे हो आप कि आपने क्या रॉ मटेरियल यूज़ करा है, कैन नॉट बी द आइडेंटिटी ऑफ योर ब्रांड.